Okay, let's begin. This is a very small, simple chapter. Only theory, no technical concepts. Very simple, and of course, we are aware about this concept of magnetism. It is also, taught to you in earlier lectures, as well as you have the practical idea also because you have all played with magnets. So you know what is magnet basically. ठीक है. So ये जो मैग्नेट्स है ना, ये बेसिकली एक आयन के ओर में से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है. और ये जो ओर है, ये जो मिनरल है पर्टिकुलर आयन का, उसका नाम है लोडस्टोन. लोडस्टोन, that is an ore of iron oxide, and it is found in very large quantities in a region called Magnesia in Asia Minor. ठीक है. So this ore was found to possess two properties. First, it attracted small pieces of iron, attractive property, and the second is it sets itself along a definite direction when it is suspended freely. So we all know that when you suspend a magnet freely, when you hang it, it aligns itself in north-south direction, just like a needle of a compass. The Chinese, earlier than 2500 BC, that is, you can say more than 5,000 years ago, they used these pieces to guide their boats. The pieces of lodestone found in nature were later on called natural magnets. The word magnet has been derived from the word Magnesia, which is a region in Asia where these minerals were, or these ores were found. Actually, जो natural magnets मिलते हैं, they are like rocks. They are found in like irregular shapes, odd shapes, and they are not very magnetically strong for use. So artificial magnets were prepared from iron in different convenient sizes and shapes, such as bar magnets, horseshoe magnets, magnetic needle, and magnetic compass. So these magnets were prepared artificially from pieces of iron. Of course, there were the naturally occurring magnets were used for preparing these artificial magnets, and there are different methods of preparing artificial magnets. यहाँ पे उतने methods के बारे में डिटेल में नहीं दिया है, but yeah, it's a very simple thing that if you keep one iron piece and a magnet in contact for a long time, the iron piece gets converted into a magnet. वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है. यू हैव टू कीप देम टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. देयर आर मेनी अदर वेज ऑल्सो. देयर आर रबिंग एंड ऑल. देयर आर मेनी अदर वेज. So they have not discussed over here those things. Anyways, so if a magnet is suspended with a silk thread such that it is free to rotate in a horizontal plane, it sets itself always pointing in geographic north-south direction. Always, when you suspend a magnet freely, it will point itself in geographic north-south direction. So depending on the direction in which the end of the magnet rests, polarity is named as north or south. So a magnet has two poles. The one which points towards geographic north is called as north pole, and the other pole which points towards geographic south is known as south pole of the magnet. So magnet can never have one pole. A monopole magnet never exists. Magnet always exists as a dipole. Dipole means it has two poles, magnetic north and magnetic south, or north and south. Two like poles repel each other. We all know this. North north, south south, they will repel. And two unlike poles will always attract each other. Unlike means north and south, or south and north. Then how do magnets attract small pieces of iron or nickel or cobalt? As you should know that these are the magnetic metals: iron, nickel, and cobalt.
ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल है. ऑल द थ्री मेटल्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. तो ये कैसे अट्रैक्ट होते हैं? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ब्रिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, एनी पोल, नियर small bits of one of these metals, what happens is this big magnet magnetizes the small pieces. मतलब ये small pieces of metals में एक temporary magnetism induce हो जाता है. Induced मतलब produce होना, अंदर से produce होना, that is induce. So what happens is, in the small pieces of metals like iron, nickel and cobalt, a temporary magnetism is induced when you bring a big bar magnet or such near them. ठीक है. सो ये बड़े बार मैग्नेट को छोटे आयन के पीसेस या निकल या कोबाल्ट या ऐसे मेटल्स के पीसेस से के नज़दीक लाने से वो उनको टेम्पररीली मैग्नेट बना देते हैं. ठीक है. और फिर वो उसको अट्रैक्ट करते हैं. यू नो दैट two magnets can attract each other, right? Opposite poles can attract each other. So the magnetism is induced in such a way that the opposite poles of these small pieces are attracted toward the big magnet. ठीक है. So how a magnet attracts small pieces of metal? By inducing magnetism in them. Remember, by inducing magnetism in the small pieces of metals, the magnet is able to attract the small pieces. So that is temporary. Okay, that is temporary इसलिए because अगर तुमने attract किया एक छोटे आयन के पीस को और फिर उसको अलग कर दिया, then the small iron piece will not behave as a magnet now. Just because it has come into contact with a big magnet for some time, it will not become magnet permanently. It is just temporary phenomena. ठीक है. The temporary magnetism acquired by a magnetic material when it is kept near or in contact with a magnet is called induced magnetism. समझ में आया? बहुत सिंपल है induced magnetism. The process in which a piece of magnetic material acquires magnetic properties temporarily in the presence of another magnet near it is called magnetic induction. So whenever you bring a magnet near some pieces of magnets and that magnet attracts those pieces of metal, then we can say that the process which is happening is magnetic induction. ठीक है. A magnetic pole induces opposite polarity to on the near end and a similar polarity on the farther end of iron bar. Suppose you have a small piece of iron and you bring a magnet near the small piece of iron. I will draw and explain. ठीक है. Suppose this is my magnet. This is north pole, this is south pole, and I have a small piece of iron. Suppose this is iron piece. Okay. Suppose if I bring this bar magnet near this piece of iron, what will happen? Temporary magnetism will be induced or magnetic induction will take place in this small piece of iron. Okay. Now, since you are bringing the north pole near this end A and end B, let's see, near end A of this small piece of iron, the polarity which will be induced in the near end A of the iron piece will be opposite to the pole which you are bringing to near it. So this will act as a south pole, and the opposite end will act as a same like similar polarity, मतलब north pole, and then it will get attracted. मतलब ये इसको attract करके यहाँ पे खींच लेगा. समझा? So this is what how magnet attracts different metals. और ये induced magnetism बिल्कुल temporary होता है. जैसे ही तुम सबको अलग कर दोगे, मतलब metal के piece और magnet को, the metallic piece will lose its magnetism. It is just temporary. उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है. इसमें you can attach like series of small iron filings or nails, ठीक है, with a bar magnet. तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे
बार मैग्नेट, बहुत सारे आयन के नेल्स छोटे छोटे एक के साथ एक ऐसे अटैच होते जाएंगे, ठीक है। बट देन इफ यू नोटिस वन थिंग दैट व्हेन यू जस्ट टेक आउट दिस आयन नेल, अगर इसको तुम निकाल दो, रिमूव कर लो, तो क्या होगा? तो ये सारे आयन नेल अलग हो जाएंगे। So this iron nail, once it loses the contact with the north pole of the magnet, it loses its temporary magnetism and then it won't be able to attract or keep the remaining iron nails attached with itself. तो वो सब निकल जाएंगे। So it proves that the magnetism was temporary. अच्छा, अब ये मैग्नेट के अराउंड अगर तुम देखोगे, किसी भी मैग्नेट का एक छोटा पीस ले लो, suppose this one over here which I have drawn here. Let me take this example. अब ये जो मैग्नेट है इसके अराउंड एक स्पेस है जो इमेजिनरी, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट लाइक विजिबल टू आईज, बट एक इमेजिनरी स्पेस है। यहां पे क्या होता है पता है? कोई भी एक छोटा आयन का पीस अगर तुमने रखा तो इट विल फील अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मैग्नेट, इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। कोई भी एक आयन का पीस कहीं भी रख दिया तो इट विल गेट अट्रैक्टेड। सो ये अट्रैक्शन ये छोटे आयन के पीस या मेटालिक पीस के ऊपर क्यों हो रहा है, जबकि हम लोग उसको सिर्फ एक छोटे डिस्टेंस पे रख रहे हैं, वी आर नॉट इवन ब्रिंगिंग इट नियर द मैग्नेट। देन व्हाई दिस अट्रैक्शन इज विजिबल? बिकॉज दिस इनविजिबल एरिया और दिस इमेजिनरी एरिया विच वी आर सीइंग ओवर हियर is known as magnetic field. मैग्नेट के अराउंड एक इमेजिनरी एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेट की वजह से जो भी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो विजिबल होता है, एंड दैट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? लेट मी शो यू। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन is basically some imaginary lines emerging from north pole and ending at south pole. तुम्हें दिख रहा है ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है। सो आई हैव टू मेक श्योर दैट दे डू नॉट कट ईच अदर and they are closed continuous curves, ठीक है। सो एरोज बना देता हूं। नॉर्थ से ये लाइंस निकल रही है सारी और साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में अंदर घुस रही है। ये जो लाइंस है ना, दे आर वेरी क्राउडेड एट द पोल्स। पोल्स पे लाइंस बहुत ज्यादा डेंस होती है, और जहां ये लाइंस बहुत ज्यादा डेंस होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट नियर द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग। सो सारी जो आयन के पीसेस या फाइलिंग्स है वो सब यहीं पे चिपकते हैं, सेंटर में बहुत कम चिपकते हैं, पोल्स पे बहुत ज्यादा, बिकॉज पोल्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत डेंस होती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग एट द पोल्स, and at the center the magnetic field is there, but it is like very far apart from each other, ठीक है। सो वहां पे इतना अट्रैक्शन नहीं होता, होता है लेकिन इतना नहीं होता है। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें पढ़ने हैं, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला कि ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी है। फिर ये क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व्स की तरह होती है, मतलब कहीं पे बीच में ब्रेक नहीं करती, क्लोज्ड कंप्लीटली नॉर्थ टू साउथ, बीच में कहीं ब्रेक नहीं आता, ठीक है। फिर दूसरा है कि दे बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन या फिर स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह
या मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तुमने बलून को देखा है, इन्फ्लेटेड बलून को, बलून के सरफेस को टच करते हो कैसा लगता है, एकदम टाइट होता है ना, इन्फ्लेटेड बलून स्ट्रेच्ड होता है, एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके देखो टेंशन होता है उसमें, तो ये भी ऐसी स्ट्रेच्ड होती है, लूज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके पीछे भी एक रीजन है जो बताऊंगा मैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, उसके बाद है दे आर क्राउडेड एट पोल्स, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, एंड फार अपार्ट एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट। सेंटर ऑफ मैग्नेट पे दूर दूर होते हैं और पोल्स पे सारे क्राउडेड होते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ व्हाई is it important to study the magnetic field lines? It is very important to study magnetic field lines because they give an idea about the direction of force acting on any metallic object which is placed in the magnetic field. तो सपोज मैं एक छोटा मेटल का पीस यहां पे रख देता हूं, ठीक है, तो इस मेटल के पीस पे फोर्स कहां पे एक्ट करेगा। देखो, अब इस पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन जस्ट टचिंग दिस कर्व। तो ये टेंजेंट को मैं एक एरो दे दूंगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट ऑन एनी बॉडी विच इज प्लेस्ड एट दिस पोजिशन। अगर मैं पोजिशन यहां पे लेता हूं सपोज, तो the tangent will be drawn like this, so the force will act in this direction. So you see, at every point there is a different direction of force. At every point in the magnetic field line, if you keep a body, it will have a different direction of force. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें क्या बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर मैं कोई आयन ऑब्जेक्ट रखूंगा तो वो कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज वेल। सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आई टेल यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी यहाँ पे लोग ने बताया है। जैसे तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 2 में तुमने देखा था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज वर वेक्टर क्वांटिटीज। इवन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका इंफॉर्मेशन देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है वो है बी, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल। और उसका जो एसआई यूनिट है, एवरी वन हैज हर्ड ऑफ दिस नेम, एसआई यूनिट है टेस्ला। यू हर्ड ऑफ टेस्ला? बताओ कहां से आया ये नाम। एनीवन नोज ये नाम कहां से आया है? क्रिश? No idea. SpaceX? हाँ, so everyone relates it with Elon Musk, who has a automated car brand called Tesla. But no, this has nothing to do with that. This was named after a very great scientist called Nikola Tesla. Nikola Tesla was a very bright scientist, and he came from a very humble background in the 20th century, 19th and 20th century. He did some amazing work in many fields, and उसका सबसे जो prominent field है that is magnetism and electricity. उसने AC alternating current की डिस्कवरी की है, मतलब इन्वेंशन किया है या डिस्कवरी, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये इसका सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड का। Sir, यप,
Sir, is direct current a scalar or a vector quantity? It is scalar. Vector is current is always scalar. Sir, but it has the magnitude and flows in one direction. Yeah, it flows in one direction, but its direction does not define its magnitude. Matlab, it will, if you just give its magnitude, it won't be an incomplete information. Even without the direction, current is more than enough to understand the concept. जिस केस में डायरेक्शन के बिना ओनली मैग्नीट्यूड इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बट करंट में ऐसी कोई बात नहीं है। इफ यू टेक साइंस इन हायर क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड दैट करंट का एक दूसरा एक वर्जन है करंट एलिमेंट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी होता है। बट द डीसी करंट, एसी करंट एज नोन टू अस इज स्केलर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व in a magnetic field such that the tangent at any point of it gives the direction of magnetic field at that point, जैसे मैंने बताया था। फिर ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी तुम्हें साइड में बताई थी। दे हैव गिवन सम 7 प्रॉपर्टीज, ठीक है। जस्ट गो थ्रू देम अगर कुछ मिसिंग है तो। हाँ, एक चीज मैंने तुम्हें अभी भी नहीं बताई कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने यहाँ लिखा है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बट वाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उसका रीजन देखो। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक चीज मैंने जो तुम्हें बताई थी दैट इज कि सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के साउथ पोल पे एंड करती है। अगर कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे जा रही है, ठीक है, ठीक है, इस पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, एनी पॉइंट यू टेक, इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट at that particular point you will find the direction of magnetic field at that point. but अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सपोज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो मैं टेंजेंट ऐसे भी बना सकता हूं और मैं टेंजेंट ऐसे भी बना सकता हूं, राइट मैं दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक पॉइंट पे, इस एक पॉइंट पे, ये पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग एक्स, ये पॉइंट एक्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो यहां है या यहां है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। इफ आई पुट अ कंपास ओवर हियर, कंपास पता है ना तुम्हें, इफ आई पुट अ कंपास ओवर हियर, can compass needle point in 2 direction at once? No. कंपास की नीडल एक साथ 2 डायरेक्शन में कभी पॉइंट कर ही नहीं सकती। सो इसका क्या मतलब है, कंपास की नीडल या तो ये वाले डायरेक्शन में पॉइंट करेगी या तो ये वाले, है ना, मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। The two magnetic field lines can never intersect each other since the direction of magnetic field can never be in two separate positions, can never be in two different position at a single point in a magnetic field. ये इसके पीछे का रीजन है। मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में नहीं हो सकता, and that's why magnetic field lines can never intersect each other. If you put a compass at a point at which you suppose that 2 magnetic field lines are intersecting, then the needle cannot point in 2 direction at once. Hence we can say that 2 magnetic field lines can never intersect each other. So यही चीज यहाँ पे लोग ने बताई है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, ठीक है। सो वेरी सिंपल, इट इज नॉट वेरी टेक्निकल और डिफिकल्ट।
हाँ, अब हम आते हैं अर्थ के ऊपर। तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्थ के पास भी अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? इसके कुछ रीजंस है, इसके कुछ एविडेंसेस है, इसके कुछ प्रूफ्स है। फर्स्ट प्रूफ ये है कि अगर तुम एक मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करोगे या एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, इट विल ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। इसका मतलब है अर्थ के अंदर कोई ऐसा एक इमेजिनरी मैग्नेट है जो हमारे बाहर अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे फ्रीली सस्पेंडेड रखे गए मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी डायरेक्शन में। So there must be some magnetic field which exists under the earth, inside the earth. ठीक है, ये फर्स्ट। सेकेंड रीजन, सेकेंड प्रूफ, एक आयरन रॉड को अगर मैं अर्थ के अंदर बरी कर दूं, इफ आई बरी एन आयरन रॉड इनसाइड द अर्थ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देन आफ्टर मेनी इयर्स इट विल बिकम अ मैग्नेट इटसेल्फ। वो खुद एक मैग्नेट बन जाएगा। कैसे? मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें मैग्नेटिज्म परमानेंटली इंड्यूस करना है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसको एक मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में रख दो बहुत सालों के लिए, तो मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट बिकम्स अ मैग्नेट। अब उसको मैग्नेट किसने बनाया? अर्थ के अंदर कोई एक मैग्नेट होना चाहिए जिसने ये डीपली बरीड आयरन रॉड को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। Then neutral points are obtained on plotting the field lines of a magnet where the net magnetic field is zero. ये neutral points के बारे में मैं बात करूंगा। I cannot talk right now because that's another concept जो अभी इसके बाद में explain करूंगा। And a magnetic needle rests with its geographical axis, making different angles with horizontal when suspended at different places on Earth. तो एक मैग्नेटिक नीडल को तुम सपोज इंडिया में देख रहे हो, तुम यूएस में चले जाओ, तुम दूसरे कंट्रीज में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अलग अलग पोजीशन पे, अर्थ के अलग अलग लोकेशन पे मैग्नेटिक नीडल विल मेक डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल। डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल मींस मैग्नेटिक नीडल जो है ना, इट विल you might have seen that magnetic needle is not exactly horizontal at all the places. Sometimes it is like tilted. नीडल देखी है तुमने? ऐसे टिल्टेड ही होती है। तुम कहीं और चले जाओ वो और टिल्ट होगी, कहीं और चले जाओ वो स्ट्रेट हो जाएगी, कहीं और चले जाओ वो ऑपोजिट साइड में टिल्ट होगी। तो ये टिल्टिंग क्यों हो रहा है? दैट इज ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस यू विल लर्न इन क्लास 12th। ठीक है, सो दैट इज वन मोर एविडेंस कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, दैट इज द एविडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट इट्स स्टडी और इट्स प्रूफ विल बी गिवन टू यू इन क्लास 12th। ठीक है, थर्ड वाला जो पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट वाला, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। आई विल टेल यू न्यूट्रल पॉइंट। See this. Okay. Do you see that there is a magnet whose north pole is placed facing geographic north and south pole is placed facing geographic south? Do you see that? ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये लाइंस, these are known as, can anyone tell इनको क्या बोलते हैं? Magnetic field lines. Yes, magnetic field lines. ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनका एक पर्टिकुलर शेप है। ये शेप कैसे मिला उसको पता है? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर बार मैग्नेट एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, एंड एट सम पॉइंट दे डू कैंसल आउट ईच अदर। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं किसी किसी पोजीशन पे, और वहां पे तुम्हें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है। और ऐसा एक लोकेशन मैं तुम्हें बता सकता हूं, ऐसा एक लोकेशन है यहाँ पे। डू यू सी दिस? एक्स दिख रहा है तुम्हें? क्रॉस
ये क्रॉस क्या है पता है? ये क्रॉस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये क्रॉस पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्रॉस पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। 0 क्यों है? मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ये क्यों 0 हुआ? Because these are neutral points. Neutral points are those points in the vicinity of a magnet where the net magnetic field of the bar magnet as well as Earth's magnetic field becomes 0. बार मैग्नेट का और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 बना देते हैं, और ये हमेशा होता है। न्यूट्रल पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करते हैं किसी भी बार मैग्नेट के अराउंड। अब अगर अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो क्या न्यूट्रल पॉइंट होते हैं यहाँ पे? नहीं। अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को किसी एक लोकेशन पे कैंसिल आउट कर पा रहे हैं। सो दिस इज एविडेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अभी इसकी एक दूसरी पोजीशन दिखाता हूं। ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया व्हेन द मैग्नेट इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ। नाउ इन दिस केस द मैग्नेट इज प्लेस्ड अलोंग साउथ नॉर्थ, मतलब ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसके अलोंग मैग्नेट का साउथ पोल रखा है, और ज्योग्राफिक साउथ के अलोंग मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा है। डू यू सी दैट? डू यू सी दैट? उल्टा कर दिया है मैग्नेट को। अब तुम देख रहे हो फील्ड लाइंस कैसी है? डू यू सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हाउ दे आर? द शेप, सी हाउ डिफरेंट द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन बोथ द केसेस इज very different from each other, right? The design is completely entirely different, and that is due to Earth's magnetic field. Earth का magnetic field ये difference create करता है। अच्छा, now if you see along the axis of magnet, axis मतलब magnet के center से एक पास होने वाली imaginary line, if you see this axis, along this axis there are 2 points where there are crosses. Can you see? Can you see them? 2 पॉइंट ऐसे Yes, हैं sir. जहां पे देर आर क्रॉसेस। क्रॉसेस का मतलब क्या है? क्रॉसेस का मतलब है कि वो नल पॉइंट्स है, न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। कैन एनीवन गिव मी द रीजन व्हाई द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट दीज पॉइंट्स? व्हाई आर दीज न्यूट्रल पॉइंट्स? Earth's magnetic field and the bar magnet's magnetic line cancel out each other and they become neutral points. Very good. The Earth's magnetic field and the magnetic field of the bar magnet cancel out each other and they create these neutral points when the magnet is placed along south north. ठीक है? So this is the evidence of Earth's magnetic field. ये magnetic field का evidence है। बीच में कुछ चीजें हैं और एक पार्ट भी है छोटा सा, कर लेते हैं। ओके, ये देखो, this is very interesting. This is your earth. तुम्हें पता है कि अर्थ में एक एक्सिस होती है और वो एक्सिस के एंड्स में होते हैं पोल्स। डू यू नो दैट? Oops. Yes, sir. So ये है तुम्हारी अर्थ की एक्सिस। एक्चुअली एक्सिस को क्या बोलते हैं पता है? जियोग्राफिक एक्सिस। दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस बिकॉज ये अर्थ का एग्जैक्ट नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिक नॉर्थ, और ये एग्जैक्ट साउथ पोल है, बट जियोग्राफिक साउथ। ठीक है? ये एंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ, ये एंड को बोलते हैं जियोग्राफिक साउथ। अब इससे टिल्टेड और एक एक्सिस होती है अर्थ में, और ये कुछ ऐसी होती है। रेड वाली एक्सिस दिख रही है तुम्हें? थोड़ी सी टिल्टेड है, जियोग्राफिक एक्सिस से अलोंग, मतलब उसके साथ साथ कोइंसिडेंट नहीं है, थोड़ी टिल्टेड है। और ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस। क्या है ये? मैग्नेटिक एक्सिस। अब मैग्नेटिक एक्सिस का वो एंड जो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास होता है उसका नाम क्या है पता है तुम्हें? मैग्नेटिक साउथ।
So magnetic south is near geographic north. और geographic south के पास जो magnetic axis का end होता है वो क्या होगा, कोई बता सकता है? Magnetic north. Absolutely correct. अब just imagine you are standing on the surface of earth and you have a small bar magnet or small compass, और तुम कंपास का डायरेक्शन चेक करते हो, कंपास को हॉरिजॉन्टल रख के एग्जैक्टली, तो कंपास किससे अट्रैक्ट होगा? कंपास की जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी? कंपास की नीडल ज्योग्राफिक साउथ। यस, कंपास की नीडल कुछ ऐसे पॉइंट नहीं करेगी। ज्योग्राफिक सी मैग्नेटिक साउथ will attract the magnetic north of the compass and magnetic north will attract the magnetic south of the compass, है कि नहीं? राइट? जो तुम्हारे हाथ में छोटा सा मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा? अर्थ के अंदर के मैग्नेट का साउथ पोल, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और ये तुम्हारे हाथ में जो छोटा मैग्नेट है उसके साउथ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा? अर्थ के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल। अच्छा, बट इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये जो तुम्हारे हाथ में कंपास है वो अप्रोक्सीमेटली कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, है कि नहीं? So the compass in your hand approximately points in geographic north and south because of the magnetic axis which attracts it and makes it point in those directions. So this is how the reality of magnetic and geographic axis is made. Now there is one more thing. The geographic and magnetic axis are not completely aligned और कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर, दे आर स्लाइटली एट एन एंगल, मतलब वो दोनों के बीच में एक छोटा सा एंगल है, बिल्कुल अलाइंड नहीं है, छोटा एंगल है। तो इसलिए जब मैं इंडिया में खड़ा रह के देखता हूँ, मेरे पास मैग्नेट का कंपास है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नॉर्थ है और मैं उस डायरेक्शन में चलता जाऊंगा, ठीक है, तो मैं जहाँ पे एंड अप करूंगा वो नॉर्थ से थोड़ा डिस्टेंस यहाँ वहां होगा। यू अंडरस्टैंड? आई एम नॉट गोइंग इन एग्जैक्टली ज्योग्राफिक नॉर्थ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ विच इज स्लाइटली टिल्टेड। तो इतना फर्क नहीं है। फर्क इतना इसलिए नहीं है बिकॉज हम इक्वेटर के पास है। जो लोग पोल्स के पास रहते हैं उनको थोड़ा ज्यादा फर्क आता है बिकॉज वहां पे जो मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो इक्वेटर के पास हम जब मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करते हैं टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, we do not have so much margin of error and we reached approximately north direction only, or whatever, east west, whatever direction we want to go to, ठीक है? So that is one more catch with this whole concept. Okay, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट्स में देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट विच आई एम लीविंग, सो जस्ट फोकस ऑन जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है। एक तो न्यूट्रल पॉइंट्स का डेफिनेशन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से इक्वल हो जाता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं एंड द नेट और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बिकम्स जीरो, ठीक है? सो उसकी डेफिनेशन तुम्हें लर्न करनी है और उसका ये जो फिगर है ये भी तुम्हें लर्न करना है। ऑल्दो ये फिगर ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा बट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट वेयर आर द न्यूट्रल पॉइंट्स अराउंड द बार मैग्नेट एंड हाउ यू शुड प्लेस बार मैग्नेट्स to get the neutral points. पूरा जो फर्स्ट एक्सरसाइज 10A फुल थियरी, नथिंग न्यूमेरिकल, नथिंग, सब थियरी है। इसमें सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करना जिसके आंसर नहीं दिए हैं। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन इज कि क्वेश्चन नंबर 1
2 3 4 5 ये सब करने हैं, ठीक है, बट 6 नहीं करना क्योंकि उसके आंसर दिए हैं। 7 नहीं करना, 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है, 11 करना है, राइट? ये सारे करने हैं, 12 13 14 15 16 17, लेकिन जिसके आंसर दिए हुए हैं वो मत करना, ठीक है? कर लोगे ये? ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसी को आइडिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में? सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तभी ये मैग्नेटिक फॉर्म में आ जाएगा या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये टेम्पररी तो है लेकिन बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए है बिकॉज इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक इस तरीके से किया गया है कि इट मेक्स इट अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैग्नेट। So it's a temporary magnet, strong magnet made from piece of soft iron. Soft iron के pieces से बना है, piece से बना है, एक single piece से। Soft iron is a kind of iron. अलग अलग टाइप के आयन होते हैं, cast iron, pig iron, soft iron. Soft iron is it has a very good magnetic permeability. Means it can become a very good magnet. It has a potential of becoming a very good magnet. इसलिए soft iron use करते हैं इसमें. It is not very soft, but it is soft because it is easy to cut. Not with a knife, of course with a hacksaw it's easy to cut, ठीक है, वो break नहीं होता है, that's why soft iron. When current flows in the coil wound around it, it is an artificial magnet. ठीक है, तो मतलब ये एक टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, सॉफ्ट आयन से बनता है और करंट फ्लो करने पे मैग्नेटिक बन जाता है, और ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, मैनमेड है, ये नेचुरली अकर नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेट दो शेप में बनाया जा सकता है, आई शेप और यू शेप, ठीक है। यू शेप को हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं, आई शेप को बार मैग्नेट भी बोलते हैं। अगर आई शेप से तुम्हें बनाना है तो देखो क्या होगा। सो व्हाट यू डू इज यू अटैच अ सर्किट विथ द कंडक्टर वाउंड ऑन द बार मैग्नेट, उसको वाइंड कर देना है कंडक्टर को, और सारे वाइंडिंग ये इंसुलेटेड वायर से होने चाहिए, इंसुलेटेड, नॉट नेकेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड, ठीक है। जब तुम करंट ऑन करोगे इट विल बिकम लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेटिज्म इसमें इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसका और एक नाम है, इसकी और एक टर्म है, इसको याद रखना है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा, यू शेप मैग्नेट कैसे बनाते हैं? यू शेप मैग्नेट बनाने के लिए एक हॉर्सशू शेप का एक आयन का, सॉफ्ट आयन का पीस लेते हैं, उसको सॉफ्ट आयन कोर बोलते हैं। यहां से तुम अगर वाइंडिंग शुरू करते हो इस लोकेशन से, सो वाइंड इन लेट्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तुम कैसे वाइंडिंग करोगे? क्लॉकवाइज। और जब दूसरी साइड वाइंडिंग करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करना। वाइंडिंग का डायरेक्शन चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाइंडिंग के डायरेक्शन से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन से एक पोल साउथ हो जाएगा और एक पोल नॉर्थ हो जाएगा, तो और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। सो वाइंडिंग एक में क्लॉकवाइज करनी है एक एंड में, और दूसरे एंड में एंटी क्लॉकवाइज। रिमेंबर दैट व्हेन द करंट फ्लोज इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के डिफरेंसेस दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये पढ़ के जाना, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और ये फ्री के मार्क्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयन, परमानेंट मैग्नेट इज मेड अप ऑफ स्टील और आयन। इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड सो लॉन्ग एज द करंट फ्लोज इन द कॉइल, मतलब जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, that is temporary, and permanent magnet produces permanent magnetic field. The magnetic field strength can be changed with electromagnet, but permanent magnet में you cannot change the magnetic field strength. So question is how do you change the strength of electromagnet? तो यहाँ पे देखो बहुत सारे तरीके हैं।
one way of changing the strength of magnetic field produced by electromagnet is change the number of turns. If you increase the number of turns, the magnet becomes stronger. Change the current. करंट का सिंबल आई होता है, पता है ना सबको. अगर करंट इंक्रीज करोगे, बैटरी बड़ी लगाओगे, बर्फ ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. सॉफ्ट आयन कोर तो तुम यूज कर ही रहे हो, ठीक है. और क्या कर सकते हो तुम? हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स. ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको इंक्रीज कर दो, इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. सो यू कैन increase or decrease the strength of the magnet by changing one of these or all of these. Number of turns, नंबर ऑफ टर्न्स तो पहले ही बोला मैंने. मैंने 2 बार बोल दिया नंबर ऑफ टर्न्स. हाँ, तो 2 ही चीजें हैं फिर, नंबर ऑफ टर्न्स है और करंट और सॉफ्ट आयन कोर. बस ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, और ये स्ट्रेंथ वेरिएबल है. परमानेंट मैग्नेट में स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते. Magnetic field of electromagnet is very strong, but magnetic field of permanent magnet is not so strong, it is weak. Polarity of electromagnet can be reversed. Wow, this is amazing point. इसकी polarity हम reverse कर सकते हैं. If you change the polarity of battery, बैटरी के टर्मिनल्स को अगर चेंज कर दिया तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंड द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी कैन चेंज. So you can change the polarity also electromagnet में. Permanent magnet में you cannot change polarity. जो नॉर्थ पोल है नॉर्थ ही रहता है, जो साउथ है साउथ ही रहता है. Then it can easily be demagnetized by switching off the current. अगर तुम्हें इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो करंट बंद कर दो, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. बट परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है वो. इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो इसके एडवांटेजेस दिए हैं जो हमें पता है ऑलरेडी. एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेस दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, बहुत सारे यूजेस हैं. प्लीज गो थ्रू द यूजेस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. और ये सारे सिंपल यूजेस. जंक यार्ड तुमने देखा होगा, स्क्रैप जो होता है आयन का हैवी, उसको उठाने के लिए और ड्रॉप करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रिक बेल, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक बेल है जो स्कूल में जब कोई लेक्चर एंड होता है या स्कूल एंड होती है तब बजता है, वो वाला इलेक्ट्रिक बेल है जिसका एक बहुत ही यूनिक साउंड होता है, ठीक है. दैट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखो. इसके कंस्ट्रक्शन में यू विल सी अ गोंग. गोंग इज अ राउंड हॉलो मेटालिक हेमिस्फीयर, ठीक है. राउंड हॉलो मेटालिक हेमिस्फीयर जिसके ऊपर ये हैमर दिख रहा है, हैमर, वो स्ट्राइक करता है. और जब वो स्ट्राइक करता है, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, सो इट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड, ठीक है. अच्छा, अब हैमर से आगे बढ़ते हैं. हैमर कनेक्टेड है एक मेटालिक स्ट्रिप एस से. मेटालिक स्ट्रिप एक आर्मेचर से कनेक्टेड है. बेसिकली हैमर आर्मेचर से कनेक्टेड है, आर्मेचर मेटालिक स्ट्रिप से कनेक्टेड है, और मेटालिक स्ट्रिप एक स्क्रू से कनेक्टेड है, एडजस्टिंग स्क्रू. और उसके सामने रखा गया है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट में से जो सर्किट है वो एक टर्मिनल में जाती है, जो एक बाहर एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है और स्विच के साथ, और वो बैटरी का दूसरा एंड टर्मिनल 1 से होते हुए एडजस्टिंग स्क्रू में जाता है. सो दिस इज द होल कंस्ट्रक्शन तुम्हारे इलेक्ट्रिक बेल का. अब होता क्या है, इसमें काम कैसे करता है? सर जब Yes. जब Yes. कनेक्ट करेंगे Yes. स्विच को तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा? बताता हूँ, वो पूरा एक उसका वर्किंग है, स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन. सो सबसे पहले नोटिस द पोलैरिटी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव. एंड करंट का डायरेक्शन जो हम लेते हैं हमेशा कन्वेंशनल लेते हैं. कन्वेंशनल पता है ना तुम्हें? कन्वेंशनल, यस, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट फ्लो करना शुरू करेगा एज सुन एज यू प्रेस द स्विच और यू ऑन द स्विच. करंट जाएगा टर्मिनल T1 में. T1 से करंट जाएगा एडजस्टिंग स्क्रू में. एडजस्टिंग स्क्रू, आर्मेचर, मेटालिक स्ट्रिप, ये सारे मेटल से बने हुए हैं. जस्ट मोमेंट, एक मिनट. ओके, या सो वेयर वर वी?
The current, yeah, current starts from terminal T1, goes into the adjusting screw. From adjusting screw, the current, the whole circuit is completed further. मतलब आर्मेचर की जो मेटालिक स्ट्रिप है वो करंट को अलाउ करती है ये S, ये जो नीचे का बेस है वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाने के लिए. जैसे ही करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पहुंच जाता है, इट्स लाइक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाता है. और जैसे ही ये मैग्नेटाइज हो जाता है, इट पुल्स द आर्मेचर मेटालिक स्ट्रिप, सॉरी आर्मेचर, टूवर्ड्स इटसेल्फ. और जैसे ही आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग, एंड एज सुन एज द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग, द कॉन्टैक्ट ऑफ आर्मेचर विद द मेटालिक स्ट्रिप ब्रेक्स. और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और वापस इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाता है. और ये जो मेटालिक स्ट्रिप है उसमें एक स्प्रिंग एक्शन है, सो इट गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द electromagnet. Now since the electromagnet is no more magnetized, it comes back to its original position, but in the original position it again gets in contact with the armature, and the adjusting screw in the circuit is completed, and again the electromagnet gets magnetized and pulls the the armature towards itself, away from metallic strip, and the hammer strikes the gong again. तो ये बार बार होता रहता है. जब तक तुम स्विच को प्रेस करके रखोगे, this magnetizing and demagnetizing of electromagnet continues, and the hammer continuously gets attracted and pulled back, attracted and pulled back, and it hits the gong again and again and again and again. तो एक कंटिन्यूस ऐसा एक साउंड आता है, ट्रर. इसका मतलब है कि वो हिट कर रहा है बार बार हैमर गॉन्ग को. सो दिस इज हाउ द electric bell and its functionality works. ठीक है, so that was the last part of the chapter. इसमें भी अगर तुम 10B देखोगे तो सिर्फ थोड़े से कुछ examples हैं, questions है, वो कर लेना प्लीज. तो 10A और 10B भी अपना हो जाएगा खत्म. So physics इसके साथ पूरा हो गया है. Now some revision is left as we have talked about earlier. Maths में भी हमने सिलेबस कर लिया है, रिवीजन बाकी है, कुछ चैप्टर्स फिर से रिवाइज करना है. फिजिक्स में भी सेम है. अब बचा एक चैप्टर अपना केमिस्ट्री. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.